Hello everyone, myself Dr. Abhimanyu Kumar Jha, and today I'm going to tell you about the NEET solution, that is NEET exam, which was held yesterday. The solution of that exam we're going to discuss today, and we are going to discuss all the questions which came in the sections botany and zoology, that is combined together, it is called as biology. और मैं आपके साथ आज सारे solutions discuss करूंगा. Myself, Dr. Abhimanyu Kumar Jha, and I have successfully created more than 600 doctors, as you can see here. So this is a thing which I would like to tell you, that we need to move forward with a proper way. And here I would like to tell you a very important thing, and that important thing is that this NEET paper was very, very easy. It was indeed very easy. Very easy paper it was. And I can tell you one thing, that talking about this paper, I can tell you that the cutoff is going to be more. The cutoff is going to be more this time. इसलिए आप सब लोग prepared रहे. इस बार वाकई में cutoff जो है वो ज़्यादा जाने वाला है. तो अगर cutoff ज़्यादा जाता है तो वाकई में ये मान के चलिए कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होने जा रही हैं. और अगर इतने आसान नहीं होने जा रही हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं. So let's see how much you're able to score and how much is going to be the cutoff. So let's move forward. And I think I need to see that whether that this PDF which I'm using, is it downloaded or not. Just give me 1 second. I will just stop the share and I'm just going to see. Okay, that's great. So just going to see that whether it is here or not. Okay, just 1 moment. Okay, I will download it. Okay, to make it easier for you people. Okay, that's great. So here we have, and I'm going to share this with you so that will make it easy for you people. Okay, that's great. So let's start with this and learn with Tutronics anytime, anywhere. So we are going to provide you with NEET Solution 2020, and let's move forward. So let's begin. And before beginning, I would like to ask you a question. Are you ready? It's a big question. Are you ready? So if you're ready, I would like to start. I'd like to take a pause, just a small pause. Ma'am. नहीं, मैंने कर दिया, रिकॉर्डिंग चल रहा है. वो बीच में आपका कॉल है, मुझे लेना पड़ेगा, आप एडिट कर लीजिएगा इस पोर्शन से. ठीक है? हाँ, ठीक. So here, now let's see. Are you ready? So if you are ready, let's move forward. Know your solutions with us. Question number 1. Which of the following is not an attribute of population? Very simple question it was. Sex ratio, natality और mortality. ये तीनों ही population के attribute हैं. सिर्फ एक नहीं है और वो है species interaction, क्योंकि इसका population से कोई लेना देना नहीं है. तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि this was the only one जिसका कि कोई population से लेना देना नहीं है. और this was an important aspect. Now, talking about question number 2, देखिए, the process of growth is maximum during. Growth का जो process है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी बैक्टीरिया का अगर आप कोई कर्व देखते हो या कुछ भी अगर आप देखते हो कि जिसमें कि वो आप देखते हो ग्रो कैसे करता है, तो वो ग्रो जो करता है तो सबसे पहले उसमें जो फेज आता है वो आता है लैग फेज, और लैग फेज के बाद आता है लॉग फेज के बाद सेनेसेंस, और सेनेसेंस के बाद डोर्मेंसी. तो आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल फेज में, जिसको हम कहते हैं लॉग फेज. सो आंसर इज फर्स्ट, दैट इज लॉग फेज. आई होप इट इज क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे. द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ऐसे रूट्स को क्या कहते हैं? ऐसे रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स. और मैंने बिल्कुल आंसर भी मार्क कर दिया आपके लिए कि आप देख सकें कि आपका कितना स्कोर आ रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी रूट्स हो ही नहीं सकता, प्रॉप रूट्स हो नहीं सकता, लेटरल रूट्स हो नहीं सकते. क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं हम फटाफट और आगे देखें फटाफट अगले क्वेश्चन पे. और शेयर मैं जल्दी से कर दूं. आई थिंक ये शेयर नहीं हुआ था शायद, तो जिन बच्चों ने ये शेयर नहीं देखा था जरा ध्यान से देख लें. क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, which of the following is not an attribute of population. आंसर होगा species interaction. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखें तो आप ध्यान से देख सकते हो इस चीज को.
क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो आंसर क्या था? आंसर था लॉग फेज। क्वेश्चन नंबर 3, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, ऐसे रूट्स को क्या कहते हैं? ऐसे रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। इसके लिए आंसर है 1। और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलेंगे, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, एक सेकंड के लिए आप रुक जाएं, मैं जरा, ओके दैट्स ग्रेट, और मैं लेके चल रहा हूं आपको बिल्कुल चौथे क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम मैच करें इस डिजीजेस और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को, तो आप देख सकते हो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइप बी, तो ए का आंसर होगा 3, और ए का आंसर अगर 3 होगा तो न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, तो ये ऑटोमेटिकली सही है कि अगर ए का आंसर 3 है और बी का 4 है तो ऐसा एक ही ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वुकेरिया बैनक्रॉफ्टाई और मलेरिया इज कॉज्ड बाय, आपको पता है, प्लाज्मोडियम। तो आंसर है 2। देख लीजिए, सारे चॉइसेस बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive। देखो, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इन दोनों में ही एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। बाकी किसी में कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें कि एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। गिफ्ट में गैमीट का ट्रांसफर होता है। आईसीएसआई आपको पता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप्स। तो ध्यान से देखेंगे, जीन आई में 3 एलील्स हैं, बिल्कुल है, IA, IB और IO। A person will have only 2 of the 3 alleles, बिल्कुल सही है, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। When IA and IB are present together, they express same type of sugar. No, they express different types of sugar. यही आंसर है। चलिए, choose the correct pair from the following. Ligases join the 2 DNA molecules। देखिए, ligases को अगर छोड़ दो तो बाकी तीनों जो है, ध्यान से समझना, बाकी तीनों के तीनों ये अलग है बिल्कुल। क्यों अलग है? क्योंकि पॉलीमरेजेस ब्रेक कर रहे हैं डीएनए को फ्रैगमेंट्स में, ये बिल्कुल ही गलत है। न्यूक्लियसेस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बिल्कुल ही गलत है। और एक्सोन्यूक्लियसेस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस कट मारेगा, बाहर से अंदर की तरफ से कट नहीं मारेगा, और स्पेसिफिक पोजीशन पे तो कतई नहीं मारेगा। तो आंसर क्या है? लाइगेसेस दे जॉइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, यही इनमें से करेक्ट है। आंसर है 1, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट चॉइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 में सेलेक्ट करना था करेक्ट मैच। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव भी है, और क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है। ये 1 लग रहा है आपको, ये 11 पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए आंसर यही। चलिए, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट जो है ये होगा लोकस्टा। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, ये होगा, क्या होगा? बहुत सिंपल, एस्टीरियास। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, ए आपका 4 हो, ध्यान से देखो, ए 4 हो, और बी आपका जो है कौन सा है? 1 हो। ये एक ही ऑप्शन है आप में। बाकी बुक लेंस आपको पता है स्कॉर्पियंस में होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस आपको पता है टीनोप्लेना में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। अब आते हैं इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है प्लाज्मोडियम में, दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। हमेशा ध्यान रखना, जो इन्फेक्शियस स्टेज प्लाज्मोडियम में होता है, जो ह्यूमन बॉडी को एंटर करता है या ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, वो कहलाता है स्पोरोजोइट्स। क्या कहलाता है बेटा? स्पोरोजोइट्स। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पोरोजोइट्स मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको बिल्कुल ध्यान न दें। आइडेंटिफाई में इनडेंटिफाई हो गया, ये दीज आर टाइपो एरर्स, डजंट मैटर। यहाँ पे वो सब्सटेंस हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और साथ में वो सब्सटेंस हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। तो देखो ध्यान से, क्या होगा? काइटिन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर है तो कोलेस्ट्रॉल में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा पेंच है। तो ध्यान से देखो, पहले में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी इन्यूलिन सही बैठ रहा है, और इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, 51 अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल होगा। तो आंसर होगा 4, यानी इन्यूलिन और इंसुलिन। नेक्स्ट देखिए, द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। यहाँ पे आंसर जो हो सकता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सीड इनसाइड द फ्रूट और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ये आंसर हो सकता है। कई इंस्टीट्यूट्स ने आंसर दिया है A एंड C, ये बिल्कुल गलत है।
ए एंड सी नहीं हो सकता, क्योंकि ए एंड सी तो ऑप्शन में भी नहीं है। ए बी एंड सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन वाला नहीं होगा। कई इंस्टीट्यूट्स ने आंसर दे दिया है पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर और एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ये भी सही नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज आर, ये प्रोडक्ट्स कहलाते हैं एमोनिया एंड हाइड्रोजन। क्या कहलाते हैं? एमोनिया एंड हाइड्रोजन। एमोनिया तो बनता ही है, तो एमोनिया एलोन नहीं हो सकता, लेकिन आंसर क्या होगा? एमोनिया एंड हाइड्रोजन दिया है, इसलिए आंसर होगा 4। नेक्स्ट पे आइए। रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा नाइट्रोजनेज वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, ये गैप 1 फेज की बात हो रही है। G1 फेज ऑफ इंटरफेज, ध्यान से देखेंगे। G1 फेज में आपका सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ग्रो करता है, लेकिन रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता। रेप्लिकेशन होगा किसमें? फर्स्ट स्टेप जो दिया हुआ आपका, फर्स्ट जो चॉइस है वो होती है एस फेज में, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। Now coming to question number 15, here you can see cuboidal epithelium with brush border microvilli, ये उस जगह पे होगा जहां एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा चाहिए होगी, और एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कहां होती है? बोमेंस कैप्सूल के बाद और आपके हेलिस लूप के बीच का जो एरिया है, जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। बिल्कुल यही आंसर है, आंसर है देखिए 3। तो बहुत ध्यान से करना था ये पेपर, इतना मुश्किल नहीं था। अब देखिए, which of the following statements about inclusion bodies is incorrect, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट inclusion bodies के बारे में incorrect है? देखो, they are not bound by any membrane, बिल्कुल सही है। These are involved in ingestion of food particles, absolutely wrong है, यहीं पे गलत आ गया। बाकी दोनों नीचे वाले एकदम सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर नंबर 2। बहुत इजी पेपर है, सोच के देखो। इस बार मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ जो है ये 585 से लेके 600 तक रहेगा, क्योंकि पेपर वाकई में बहुत इजी, बल्कि हो सकता है 585 से थोड़ा और ऊपर ही चला जाए। यस, चलिए। तो which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells? यहाँ पे बहुत सिंपल आंसर है बच्चे, गोल्जी बॉडीज, आप सब जानते हैं। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम भी गोल्जी बॉडीज में होता है, जो ग्लाइकोसिलेशन और ग्लाइकोसिडेशन करता है। सो आंसर वाज 3। Now, in gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को अगर हमें देखना है तो किसके हेल्प से वो विजुअलाइज हो सकते हैं? जरा ध्यान से देखें। इथिलियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। क्यों? क्योंकि इथिलियम ब्रोमाइड जो है यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में, इथिलियम ब्रोमाइड आपके डीएनए के बैंड को फ्लोरेस कराता है। व्हाई? बिकॉज़ इथिलियम ब्रोमाइड इंटरकैलेट्स विद द बेसिस ऑफ डीएनए, और जब इथिलियम ब्रोमाइड इंटरकैलेट कर जाता है डीएनए के बेसिस के साथ, तो आराम से आपका बैंड चमकता है जब उस पे यूवी लाइट पड़ती है। ठीक है, तो आंसर इज बी। देखो आंसर्स कितने क्लोज दिए जाते हैं, बी या सेकंड ऑप्शन कह सकते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिया है, तो सेकंड ऑप्शन होगा। अदरवाइज ए बी सी डी अगर होता तो बी होता बच्चों। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? बिल्कुल सही। हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, हो ही नहीं सकता। बाकी सारे के सारे सही, चाहे तो आप पढ़ के देखिए। अगर आपने तैयारी ठीक ढंग से की है तो मान के चलिए कि कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जरा आगे चलें। रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स में क्या होता है जरा ध्यान से देखें। रे फ्लोरेट्स में मैं आपको साफ साफ बता दूं, एपिगाइनस ओवरी है। तो एपिगाइनस का मतलब क्या हुआ? ओवरी कैसी होगी? एपी मतलब ऊपर और गाइनस मतलब ओवरी नीचे होगी और बाकी सब ऊपर, यानी इंफीरियर होगी। आंसर नंबर 1, आंसर इज द फर्स्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है फर्स्ट चॉइस, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1, यहां सी स्मॉल होगा इको R1 में, ध्यान रखेंगे, टाइपो एरर हो गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर था फर्स्ट ऑप्शन, जिसको याद करने का तरीका है गाट टीसी, GAATTC, और जी के ऊपर कट मारेगा 5 प्राइम एंड से इधर, और नीचे वाले में भी 5 प्राइम एंड से। ठीक है, तो यही फॉर्म करता है बाद में स्टिकी एंड्स। सो ऑप्शन नंबर 1। Next, question number 22. You can see this. Identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. Restriction enzymes के लिए इनमें से कौन सा wrong statement है? पहला है each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence. बिल्कुल सही है। They cut the strand of DNA at palindromic sites. बिल्कुल सही है। They are useful in genetic engineering. Absolutely सही है, तभी तो recombinant DNA बनता है। और स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड यूजिंग डीएनए लाइगेजेस, ये एकदम गलत है, क्योंकि एक तो ये डीएनए लाइगेज के बारे में है तो सही, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पूछा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है,
तो ये तो डीएनए लाइगेज के बारे में स्टेटमेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में है ही नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? देखो, further sewage treatment के लिए जो डाला जाता है वो होता है आपका activated sludge। प्राइमरी स्लज को डालने की जरूरत नहीं, फ्लोटिंग डेब्रिस को डालने की जरूरत नहीं, और इफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट को डालने की जरूरत ही नहीं होती। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब देखो, इंस्पिरेशन के दौरान सबसे पहली चीज क्या होती है कि डायफ्राम के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारी ये रिब्स है ना, तो रिब्स में बाहर की तरफ से जो मसल्स हैं उनको क्या, देखो रिब्स के जो मसल्स हैं उनको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। लेकिन अगर हमारे अंदर की तरफ हो तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, बाहर की तरफ हो तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमारा ये जो पोर्शन है रिब्स का, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि हमारी जो ये चेस्ट की कैविटी है ये मूव करे किधर, आउटवर्ड, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एयर इनहेल कर सकें। ठीक है ना। तो ए और बी तो बिल्कुल सही है। सी की बात करें, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या होगा बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए एंड बी। आई होप यू गॉट इट। इजी है, मजेदार है, बहुत आसान पेपर था। अगर आपने तैयारी ढंग से की है तो मतलब ही नहीं कि आपका इस बार रैंक छूट जाए। वेरी गुड। If the head of cockroach is removed, it may live for few days because, क्यों? हेड अगर कॉकरोच का काट दोगे तब भी वो कई दिनों तक जिंदा रहता है, क्यों? क्योंकि हेड बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन लेता है नर्वस सिस्टम का, जबकि बाकी का जो है सारा, तुम देख लो ना, सारे के सारे गैंग्लिया जो है, सब इसोफेजियल गैंग्लिया से लेके नीचे तक सारे, सेगमेंटल गैंग्लिया भी सब जो है वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है। इसीलिए कॉकरोच जिंदा रह सकता है आराम से कई दिनों हेड काटने के बाद। आंसर ऑप्शन नंबर 3। Which of the following statements are true for the phylum Chordata? देखो, यूरोकॉर्डेटा में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, देखो, नोटोकॉर्ड extends from head to tail and it is present throughout their life। असंभव, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेफेलोकॉर्डेटा में ऐसा होता है, यूरोकॉर्डेटा में तो सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, बिल्कुल सही है। तो बी एंड सी तो सही हो गए। फोर्थ ऑप्शन है, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। मैं आपको बता दूं ये भी गलत है, क्योंकि वर्टिब्रेटा कहाँ गया भाई, ठीक है, और इसमें भी हेमिकॉर्डेटा अब कॉर्डेटा में नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखें। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे, बी एंड सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे पूछा गया था which of the following statements are true for phylum Chordata। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, match the organs with its use in biotechnology। Bacillus thuringiensis में एक चीज गड़बड़ हो गई है, कभी भी स्पीशीज का नाम हमेशा ध्यान रखना, वो कभी भी कैपिटल में नहीं लिखा जाता। देखो, अगर हम जैसे टाइपिंग के लिए देते हैं, टाइम बहुत कम था हमारे पास, हम पूरी तरह, हमने टेक्निकल चीजें तो काफी चेक कर ली, बट थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं, क्योंकि जो लोग टाइप करते हैं वो दे मे बी नॉट कंसर्न विद बायोलॉजी। तो बैसिलस thuringiensis जो है जिएंसिस होगा। तो क्या करता है ये, बेसिकली इट इज रिलेटेड विद क्राई प्रोटीन। तो एक ऑप्शन हो गया 4, ध्यान से देख लो, और एक का 4 वाला ऑप्शन एक ही है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये एक ही नाम होगा, ट्यूमिफेशियंस एक ही स्पीशीज का एक ही वर्ड होगा। तो आप देख सकते हो सी वाला ऑप्शन, अगर हम देखें तो वो भी देखेंगे। और यहाँ थर्मस एक्वेटिका नहीं, थर्मस एक्वेटिकस होगा, थर्मस एक्वेटिकस। और थर्मस एक्वेटिकस आपको पता है टैग डीएनए पॉलीमरेज यानी 3, तो बी का 3 और ए का 4 वाला ऑप्शन चुन लो, बाकी सारे एकदम सही है। तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, बाकी भी देखिए। I hope it is very easy. It is really very simple. It was indeed one of the easiest papers seen in the last few years. See, I have been teaching NEET students since last 16, 17 years. See, NEET came into existence 4 to 5 years back. NEET तो 4 से 5 साल पहले आया है, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया पीएमटी स्टूडेंट्स को, स्टेट पीएमटी के स्टूडेंट्स को मैं 16-17 सालों से पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching them since 16 to 17 years. But you know, this was one of the most easiest papers। चलते हैं आगे। Match the following concerning essential elements and their functions in plants। ध्यान से देखो, आयरन हेल्प करता है क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस में, सबसे पहले तो ये बात पकड़ लो। इसके बाद एक बात और पकड़ लो कि मैंगनीज जो है वो हेल्प करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। इन दोनों को मिला लो, बाकी तुम्हारे मिल जाएंगे। ए यानी कि 3 वाला ऑप्शन, देखो ए को 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, 3। और मैंगनीज वाला मैंने कहा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा किसका, डी का। तो जल्दी से देख लो फटाफट, ए का 3 और डी का फर्स्ट कौन सा है, मार्क कर दो फटाफट। आंसर नंबर, बहुत सिंपल होता है। देखो,
उस समय तुम्हें 60 मिनट्स में करने होता है। अभी तो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन उस समय तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस राइट नाउ, आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर्स आल्सो, बट उस समय आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो आप चाहो तो वो क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर आराम से निपटा सकते हो। 90 क्वेश्चंस आर देयर, इजीली यू कैन कंप्लीट इट विद इन फर्स्ट 60 मिनट्स। ओके, चलिए अब आगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल सही है। Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf, बिल्कुल सही है जी। Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color, ये गलत है, क्योंकि देखो secondary xylem तो है sapwood और lighter in color भी होता है, लेकिन sapwood innermost नहीं है, sapwood outer है, hardwood inner होता है। इसीलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है, फोर्थ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि फोर्थ वाला भी बिल्कुल सही है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, ऑयल वगैरह जो होता है, हार्डवुड इज डार्क इन कलर। समझ में आया? यहाँ दोनों ऑप्शन 3 लिखा हुआ है, लास्ट ऑप्शन 4 होगा, ध्यान रखना, जो कल एग्जाम में आया था। एग्जाम आप लोग दे ही चुके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। मैच द फॉलोइंग। पहला, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। अब कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करता है मैलोनेट। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स, आपको पता है कोई ना कोई प्रोटीन ही होगा, तो इनमें से प्रोटीन कौन सा है? छांट लो, कोलेजन। अब देखो 1 का आंसर 2, तो देख लो ए यानी 2 वाला कौन सा है, और बी का 4, ये लो जी, तो आंसर क्या है? सी पता ही आपको, सेल वॉल मटेरियल फंजाई क्या होता है? काइटिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबॉलिक नहीं होगा बेटे, दिस वुड बी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सो दिस वुड बी राइसिन, सो आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिए, meiotic division of the secondary oocyte is completed। कब कंप्लीट होता है meiotic division secondary oocyte का? ध्यान से देखेंगे। A very, very important aspect which we are doing today. Yes, at the time of fusion of sperm with ovum, जिस समय sperm का fusion होता है ovum के साथ, उसी समय complete होता है, ना ovulation से पहले, ना copulation के वक्त, और ना zygote formation के बाद। According to Robert May, the global species diversity is about, बहुत simple है, NCERT से उठाया हुआ डायरेक्ट लाइन है, 7 billion। एस्टिमेटेड तो बहुत है, बट रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेट किया है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, वो है 7 बिलियन। तो ऑप्शन नंबर 4। चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं आगे। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज। अब देखो, कई इंस्टीट्यूट्स ने, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई इंस्टीट्यूट्स ने आंसर दिया बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। ये गलत। पहला स्टेप ये होता है कि बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए एंड टीआरएनए टू राइबोसोम, लेकिन उससे भी पहले एक चीज होती है कि एमिनो एसाइलेशन होती है टीआरएनए की, पहले चार्जिंग भी तो एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये एनसीईआरटी में दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन होगा 3। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? बहुत ही सिंपल है, वेस्टर्न घाट्स इंडिया में जरूर इंपॉर्टेंट है, मेडागास्कर, हिमालयाज ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी मिलती है वो मिलती है अमेज़न फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ दिस प्लैनेट। ऑप्शन नंबर क्या था बेटा इसका? 4। चलते आगे। Which of the following statements is not correct? In man, insulin is synthesized as a proinsulin, बिल्कुल सही है। The proinsulin has an extra peptide called C-peptide, बिल्कुल सही है। The functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds, ये बिल्कुल गलत है। Bonds होते हैं, लेकिन उनके बीच disulfide bonds होते हैं। And last but not the least, genetically engineered insulin is produced in E. coli, आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे। The traverse section of a plant shows following anatomical features, आप देख सकते हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना था कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? मोनोकोटिलिडनस स्टेम, क्योंकि कुछ नहीं पकड़ना था, फोर्थ वाला चॉइस पकड़ना था। ध्यान से देखो, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा किस में एब्सेंट होती है? देखो, डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट रूट में भी फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, तो एब्सेंट ही एक में होता है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, सारे ऑप्शंस देख लो, उनमें जो तुम्हें लग रहा है जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जो पक्का पक्का पता है, वो देख लो, उसके बेसिस पे आंसर जल्दी निकल आएगा। सो फ्लोएम पेरेन्काइमा किस में एब्सेंट होता है बच्चे? मोनोकोटिलिडनस स्टेम। तो आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 1। Hope it is clear. Okay, so let's proceed to the next one. Match the following columns and select the correct option. See, column number 1 में A option है 6 to 5 pairs of gill slits. Yes, it is indeed cyclostomes. That is the second choice. Yes, so A is 2. So there is only one option. Now one more we can see. Heterosalpine caudal fin, chondric thighs. So B is third. And air bladder, you know, that is present in bony fishes. That is ostick thighs. तभी तो they don't need to swim constantly.
they can maintain themselves at a particular level. किसी भी particular level पे they can maintain themselves and they can stand at a particular place. There is no need for them to swim constantly. But for cartilaginous fishes, they need to swim constantly. ठीक है? Next is poison sting, and poison sting आपको पता है ट्राइगन में होता है, इसीलिए उसको stingray भी कहा जाता है. So first option was correct. That is option number 1. Next, from his experiments, Stanley Miller produced amino acids by mixing the following in a closed class. बहुत ही सिंपल था, लेकिन चॉइस इतने ज्यादा पास थे. CH4, H2, NH3 and water vapor at 800 डिग्री सेल्सियस. NCERT पढ़ के जाते तो यूं होता. ज्यादातर बच्चों ने सही किया है. मेरे काफी स्टूडेंट्स ने ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल यूं कर दिए. चलिए, तो बहुत बढ़िया था. देखो कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए CH3 दो जगह डाल दिया. जो पढ़ के नहीं गया होगा हो सकता है इसमें भी कंफ्यूज हो गया हो. इसीलिए हमेशा पढ़ के जाना. और खासकर वो बच्चे जो नीट 2021 या नीट 2022 दे रहे हैं, वो जरूर ध्यान में रखें कि क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़ें और आपके बेसिक्स बिल्कुल इंटैक्ट होने चाहिए, तभी निकलेगा नीट. बहुत बढ़िया. एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय. सबको मालूम है कुछ भी नहीं था इसमें, ना वैलेस का कोई लेना देना इसमें. ठीक है, अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने तो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में मदद की थी. चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था. ओपेरिन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी दी थी. कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने ही डिसअप्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन. हिकल्स थ्योरी आप लोगों को मालूम होगा. रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. चलिए आगे चलिए. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of glass plates. ध्यान से देखना. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of glass plates at night and in early morning says. इस process को क्या कहते हैं? क्या ये transpiration है? क्या ये root pressure की वजह से है? या पूछा ये नहीं गया कि ये process क्या है? पूछा ये गया है कि कौन सा process responsible है इस चीज के लिए. जो आप घास के ऊपर देखते हो, टिप ऑफ ग्रासेस के प्लेट ऊपर या ग्रास के प्लेट्स के ऊपर आप देखते हो रात में पानी की बूंदें, या फिर सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में पानी की बूंदें, तो वो किस वजह से है? वो है रूट प्रेशर. देखो ट्रांसपिरेशन नहीं है इसमें. अगर गटेशन दिया होता, अगर पूछा जाता ये प्रोसेस कहलाता क्या है, तो आंसर हो जाता गटेशन. लेकिन कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, तो आंसर हो जाएगा रूट प्रेशर. तभी तो खींचता है पानी. यस, चलिए आंसर वाज ऑप्शन नंबर 2. आई होप इट इज क्लियर. चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन है, या निकोटीन कई लोग कहते हैं, निकोटीन है, स्ट्रिक्नाइन है एंड कैफीन, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर. बहुत ही सिंपल चीज है, डिफेंस एक्शन. जो एनिमल्स उसको खाते हैं ना, उन्हें इतना कड़वा सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, वो फिर दोबारा टेस्ट नहीं करते इसको. तो आंसर इज डिफेंस एक्शन. नाउ कमिंग टू फोटोसिंथेसिस चैप्टर से एक क्वेश्चन था आपका. ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. देखो बहुत अजीब तरह के चॉइसेस दिए थे, लेकिन आंसर यहाँ क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3C कंपाउंड होगा, PGA जो बनता है, और 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनता है. लेकिन वो जो है वो आपका 2 कार्बन कंपाउंड है. तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन इनमें से चुनना पड़ेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. सो नहीं 2 molecules of 3 carbon compound नहीं होगा बेटा. It will be 1 molecule of 3 carbon compound. Yes, this is an error in the answer itself. It will be 1 molecule of 3 carbon compound. Go for this second option. Correct it. Question number 42 में यहाँ typo error रह गया है, मैं बता दूं. आंसर होगा 2. That is 1 molecule of 3 carbon compound. Plus 1 molecule of 2 carbon compound लिख सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन इसके साथ नहीं दिया हुआ है. ठीक है ना. चलो. BT cotton variety that was developed by it was not TGH, it is the introduction of toxin Genobacillus thuringiensis is resistant to. बहुत सिंपल है, आपको भी पता है, वो insect pests के लिए ही डेवलप किया. It is resistant to insect pests. Which of the following refers to correct examples of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? Anthropogenic action का मतलब होता है man-made activities, है ना, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज होती है. तो इसमें क्या है, डार्विन्स, फिंचेस और गैलापागोस आइलैंड्स का कोई लेना देना नहीं था उससे. लेकिन नीचे की जो तीनों है ना, ध्यान से पढ़ो. herbicide resistant weeds, drug resistant eukaryotes और man created breeds of domesticated animals like dogs, ये तीनों के तीनों ही सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, दैट इज बी, सी एंड डी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी. इनमें से कौन सा इम्यूनिटी के लिहाज से गलत स्टेटमेंट है? देखो पहला पढ़ो. When exposed to antigen, living or dead, antibodies are produced in the host's body. It is called active immunity. बिल्कुल सही है.
When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. बिल्कुल सही है, absolutely correct. Active immunity is quick and gives full response. ये गलत है. एक्टिव इम्यूनिटी को टाइम लगता है बिल्डअप होने में. हाँ, सेकेंडरी रिस्पांस जो होता है, प्राइमरी रिस्पांस स्लो होता है, बट सेकेंडरी रिस्पांस उनका वो फास्ट होगा. बट यहाँ पे उसकी बात नहीं की जा रही है. तो एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पांस. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बोथ ऑप्शन देखो. फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर. इट इज एन एग्जांपल फॉर पैसिव इम्यूनिटी. बिल्कुल सही है. आपको चुनना था रॉन्ग स्टेटमेंट, जो कि हमने चुन लिया, ऑप्शन नंबर 3. दैट्स ग्रेट. चलिए, आधे के मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं. अब चलते हैं आगे. By which method was a new breed, Hisardale of sheep, formed by using Bicaneri ewes and merino rams? इसमें क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई थी बेटे. इन ब्रीडिंग होता है बिल्कुल जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है ना, उनका आउट क्रॉसिंग बिल्कुल ही अलग सा हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे रिलेटेड थे, लेकिन कई एंसेस्टर्स तक, दूर दूर तक उनका जो है कई एंसेस्टर्स, मतलब अगर मैं देखें 4-5 जनरेशन तक उनका मतलब क्लोजली रिलेशन नहीं था. तो दिस वाज क्रॉस ब्रीडिंग. Next was identify the correct statement with reference to human digestive system. उसमें देखिए, ileum opens into small intestine, बिल्कुल सही है. Serosa is the innermost layer of the alimentary canal, एकदम गलत है. Ileum opens into small intestine लिखा जरूर है स्टेटमेंट, लेकिन आपको पूछना था करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. उसके हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम गलत हो गया. क्यों? क्योंकि इलियम कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं खुदता भाई. इलियम तो खुद ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. इलियम तो खुद ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो पहला वाला तो गलत हो गया, बाहर हो गया. सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल बाहर हो गया, आउटर मोस्ट होता है. इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, बिल्कुल सही है. और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम, हो ही नहीं सकता. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तो सीकम के पास हो. चलो, तो आंसर है थर्ड ऑप्शन, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट. करेक्ट चुना था. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देखो ध्यान से, इसमें बहुत इजी था और बहुत इजीली आपको करना भी था. ध्यान से देखिए, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम का सबसे ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ए ऑप्शन होगा क्या? ब्यूटिरिक एसिड. ब्यूटिलिकम है तो ब्यूटिरिक एसिड, ध्यान देना. बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की अगर हम बात करते हैं तो दैट गिव्स अस व्हाट? साइक्लोस्पोरिन ए. और साइक्लोस्पोरिन ए आपको पता है इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट. जब इम्यून रिजेक्शन होता है ना, जब ऑर्गन रिजेक्शन होते हैं या कोई ऑर्गन किसी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया और उस ऑर्गन को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है. नेक्स्ट इज मोनास्कस परप्यूरियस. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और मोनास्कस परप्यूरियस का आपको पता होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन जो है आप ध्यान से देखेंगे. लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम का अगर हम देखें ना, तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम के केस में एक चीज जो सबसे ज्यादा है, जो वो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम की बात तो हो गई कि ब्यूटिरिक एसिड. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये भी बात सही हो गई आपकी, साइक्लोस्पोरिन ए. मोनास्कस परप्यूरियस की अगर हम बात करें, तो मोनास्कस परप्यूरियस जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट है, ठीक है ना. और एस्परजिलस नाइजर, ये आप जानते ही हो, एस्परजिलस नाइजर में कुछ खास नया है नहीं, सिट्रिक एसिड. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? किसी बंदे को डायबिटीज है, इसके लिए दो चीजें होती हैं. उसका जो यूरिन है उसमें तो कीटोन एसिड्स का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कीटोन्यूरिया, और उसमें ग्लूकोज का कंटेंट बहुत बढ़ जाता है. ग्लूकोज स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द यूरिन, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया. बाकी से इसका कोई लेना देना नहीं है. सो आंसर था थर्ड ऑप्शन. रेनल कैल्कुलाई होते हैं जो किडनी में स्टोर हो जाते हैं. यूरेमिया आपको पता ही है, यस, ठीक है ना. So that is very very simple. यूरिया जब आने लगता है यूरिन में. नेक्स्ट, क्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू. ध्यान से देखेंगे, क्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बेटे, जो एमाइलोज के साथ एमाइलोपेक्टिन होता है ना, जो ब्रांचिंग कराता है आपके स्टार्च में, ठीक है ना. तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन जो कि आपके मसल्स में प्रेजेंट होता है और लिवर में प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन विल बी 2. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. चलिए, बहुत बढ़िया. अब चलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इसमें है गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्प्स. गोनोरिया है, सिफिलिस है और जेनिटल हर्प्स. ये तीनों के तीनों ही एसटीडीज हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. बाकी किसी में देख लो, मलेरिया, इन तीनों में दो अगर है सेकंड ऑप्शन में, तो मलेरिया नहीं है. एड्स है, फाइलेरिया, तो मलेरिया नहीं है. और फाइलेरिया भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, मलेरिया भी नहीं है. नेक्स्ट में देखो, कैंसर बिल्कुल नहीं है. एड्स है, सिफिलिस है. तो कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो उनमें नहीं है. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए. मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मेयोसिस. बहुत इजी था. जाइगोटीन आप सब जानते हैं बेटे. जाइगोटीन का मतलब ही है क्या? सिनेप्सिस. तो बस बहुत सिंपल है, यानी
ए का ऑप्शन था 4। पैकेटिन आपको पता है पैकेटिन किस चीज से रिलेटेड है, पैकेटिन रिलेटेड है क्रॉसिंग ओवर से, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत पैकेटिन में मानी जाती है। तो बी का ऑप्शन हो गया 3, तो जल्दी से देख लो ए 4 और बी 3। ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको मत माइंड करिएगा, ये कई बार फाइल्स के कन्वर्ट करने में जो है थोड़ा सा हिल जाती है फॉर्मेटिंग। And C की अगर हम बात करें डिप्लोटीन, you know it is associated with chiasmata. Chiasmata are basically the points of genetic exchange, the points at which genetic exchange takes place during crossing over. ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पता है डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा आएगा बेटा, ध्यान से देखिए, सेकंड ऑप्शन आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following pairs is of unicellular algae? यूनिसेल्युलर एल्गी का जो पेयर है वो है कौन सा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, दोनों ही ग्रीन एल्गी। एक क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना को अब ग्रीन एल्गी में नहीं रखते लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में अभी भी रखा है। चलो, which of the following hormone levels will cause release of ovum या ovulation from grafted follicle? अब देखो यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वैसे तो कहते हैं जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सडन सर्ज होता है 13th डे में, वो 14th डे को ओव्यूलेशन कराता है, अगर हम मान लें 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन यहाँ एलएच सर्ज नहीं दिया, यहाँ इन्होंने उल्टा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि वो तो ओव्यूलेशन के बाद सीक्रेट होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच भी नहीं है क्योंकि एफएसएच जो है उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन ही तो ओव्यूलेशन की तरफ ले जाएगा। तो आंसर होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन करते करते जब पीक तक जाएगा उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। ये अलग बात है कि वहां एलएच सर्ज होना जरूरी है तभी ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ध्यान से, बीटी कॉटन आपको पता है बैसिलस thuringiensis, तो ए को तो 4 पकड़ा दो। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी ये भी आपको पता है। जीन थेरेपी यानी बी का 1, ए का 4 हो गया, बी का 1 देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, बस फर्स्ट वाला ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल आप इसे मार्क कर सकते हो। आरएनआई, आरएनएआई आपको पता है बेटे क्या, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, सी का देख लो बिल्कुल, सेल्यूलर डिफेंस। एंड पीसीआर आपको पता है डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन के लिए पीसीआर यूज किया जाता है, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए साइन किया गया था और किस चीज के कंट्रोल के लिए साइन किया गया था, जरा ध्यान से देखेंगे। बहुत सिंपल है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के इमिशन को रोकने के लिए किया गया, ठीक है ना, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। इट वाज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरोइड्स? विरोइड्स आपको पता है ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं और इनमें और वायरस में फर्क ये होता है कि विरोइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता लेकिन आरएनए होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही था, दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। पहले लास्ट के दो तो बिल्कुल ही गायब हो गए, और आरएनए में प्रोटीन कोट होता तब तो वायरस ही हो जाता ना। प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड, ये ध्यान में रखेंगे, और उसके यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, कुछ खास था ही नहीं इसमें, हाफ इंफीरियर, ठीक है, वो उसको क्या बोलेंगे, प्लम में होता है और किसी में नहीं होता, मतलब ही। चलिए, एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज किस चीज से कन्वर्जन में हेल्प करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ह्यूमन डाइजेशन से, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर 2, 59 का आंसर था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मैच द ट्रॉपिक लेवल्स विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ध्यान से देखो, अब इसमें एक फूड चेन दिया हुआ है तुम्हें, फूड चेन के हिसाब से तुम्हें वो करना है, मैच करना है। तो देखो बहुत सिंपल था, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में इनमें से कौन सा हो सकता है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में एक ही हो सकता है और वो है आपका वल्चर, सबसे ऊपर। सबसे नीचे कौन सा होगा, प्रोड्यूसर यानी ग्रास, कर दो। आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी सी वाले का आंसर हो जाएगा 4, सी का 4 एक ही में दिया हुआ है, वेरी गुड। और मैंने आपको बताया वल्चर सबसे ऊपर होगा, यानी कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी ए का 2, ए का 2 और सी का 4 देखो। और उसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कौन सा होगा, रैबिट, क्योंकि घास को कौन खाएगा, खरगोश। और उसके बाद देखो लास्ट में का खरगोश को कौन खाएगा, कौन खाएगा, जल्दी बताओ, बी का 1 यानी कि क्रो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी जल्दबाजी में हम नहीं करेंगे, वी आर फास्ट, बट हम हर क्वेश्चन पे अच्छा खासा टाइम देंगे। Yes. Now, how many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits? देखो 7 contrasting जो characters लिए गए थे और उनमें सभी में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ट्रेट था। तो पी प्लांट वैरायटीज कितनी ली गई होंगी, 7 into 2 कर दो, कितना हुआ आंसर, 14। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 3 वाज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल था, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ध्यान से देखिए, ऑर्गन ऑफ कॉटाई की अगर हम बात करें, इट इज लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन,
कॉक्लिया की बात करें, कॉक्लिया बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल तरीके से दिया भी हुआ है। कॉक्लिया का सामने जो दिया हुआ है वो देखिए, कॉइल्ड पार्ट्स ऑफ द लैबिरिंथ, बिल्कुल कॉइल्ड है, सबसे ज्यादा कॉइलिंग कॉक्लिया की होती है। और यूस्टेकन, दिस इज नॉट इक्यूस्टेकन, दिस इज यूस्टेकन, ईयू, दिस इज अ टाइप एरर। यूस्टेकन ट्यूब की अगर हम बात करें तो वो मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है फेरिंक्स से, यानी कि सी का आंसर 1। तो देख लो, ए का 4, बी का हमने क्या करा, कॉइल पार्ट्स, यानी बी का 2 और सी का 1। तो देख लो जल्दी से कौन सा, 4 बी 4 2 1, यस, ये ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट वाला आपको पता ही है, डी की बात करें, स्टेप्स होता है बेटा, स्टेपिया नहीं है, दिस इज स्टेप्स। स्टेप्स आपको पता है, दिस इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो। आई होप यू गॉट इट। बहुत बढ़िया, आसान है ना। यहाँ पे 63 में इन वाटर हायासिंथ होगा, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। देखो नाम से जैसे दिया गया था ना, तो आधे से ज्यादा बच्चों ने कंफ्यूज होकर वाटर करंट्स मार्क कर दिया होगा। नो, इसका आंसर कुछ और था। आंसर क्या है, इंसेक्ट्स ऑर्बिट। नाम भले ही वाटर लिली है या वाटर हायासिंथ है, लेकिन वाटर से के थ्रू नहीं होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop. Gibberellin. Gibberellin की वजह से इंटरनोडल इलॉन्गेशन हो जाता है। जिब्रेलिन हम जब भी स्प्रे करते हैं तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन होता है, जिसकी वजह से जो यील्ड है शुगर के क्रॉप का वो बढ़ जाता है। आंसर था सेकंड ऑप्शन, दैट इज जिब्रेलिन। चलो, इनमें बहुत सिंपल था। देखो, साइटोकाइनिन तुम्हें पता है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, ABA। चलो, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। प्लास्टोक्विनोन क्या फैसिलिटेट करता है? कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, किससे होगा और कहां जाएगा? जरा ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल था। प्लास्टोक्विनोन की अगर हम बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है जो आपका फोटो सिस्टम जो है वहां से साइटोक्रोम बी और FB6 और F कॉम्प्लेक्स में जो है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। चलिए, Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? इनमें से कौन सा एक इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है जो सीड डॉर्मेंसी को गवर्न करता है? क्योंकि एब्सिसिक एसिड बिल्कुल इनहिबिटरी है और आपको पता है डॉर्मेंसी को गवर्न करता है। फिनोलिक एसिड भी उसी की तरह एक इनहिबिटरी सब्सटेंस है। और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, दिस इज आल्सो एन इनहिबिटरी सब्सटेंस। तो आंसर था जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड कभी भी इनहिबिशन नहीं करेगा, वो हमेशा चीजों को बढ़ाता है। जैसे प्लांट्स के केस में अगर मैं आपको कहूं, जब आप स्प्रे करते हो ना जिब्रेलिन, तो स्प्रे करने के साथ साथ आप देखते हो कि इंटरनोडल इलॉन्गेशन बढ़ता है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। कई इंस्टीट्यूट्स ने इस सवाल का जवाब RNA पॉलीमरेज लिख दिया। RNA पॉलीमरेज का इसमें कोई रोल नहीं है। RNA पॉलीमरेज सिर्फ अपने जो प्रोमोटर रीजन है, जो उसका प्रोमोटर रीजन है DNA के अंदर, उस प्रोमोटर रीजन को RNA पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है। यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज 1 अलग है, 2 अलग है और 3 अलग है। तीनों के अलग-अलग फंक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम फैसिलिटेट करेगा ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, रेप्लिकेशन हो, जो एंजाइम फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स वो है हेलिकेज। हेलिकेज कॉजेस अनवाइंडिंग ऑफ DNA हेलिक्स। तो डबल स्ट्रैंडेड जो आपका DNA है उसकी अनवाइंडिंग या उसको अनजिप करना, ये हेलिकेज का काम है। आई होप यू गॉट इट। वेल डन। चलिए अब आगे चलते हैं। Which of the following would help in prevent? It is not prevention. This is a typo error. It is prevention of diuresis. Diuresis का मतलब क्या होता है? यूरिन का बार-बार निकलना, है ना, ज्यादा निकलना। तो जैसे कुछ सब्सटेंसेस है, कॉफी अगर आप ज्यादा पियोगे, चाय ज्यादा पियोगे तो डायरेसिस ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस ले जिससे वाटर कम निकले, वाटर का लॉस कम हो, तो उसको कहते हैं एंटी डायरेटिक सब्सटेंसेस। उसी तरह एक हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं वैसोप्रेसिन, दैट इज प्रेजेंट or that is stored in the posterior lobe of our pituitary gland. तो आप देखिए ध्यान से, which of the following would help in prevention of diuresis? तो diuresis के prevention में इनमें से कौन सा हेल्प करेगा? तो देखो सबसे क्या है, देखो सबसे पहला more water reabsorption due to under secretion of ADH। तो under secretion से तो नहीं होगा more water reabsorption। सेकेंड वाला देखो reabsorption of Na+, यहाँ Na+ का मतलब सोडियम है, A small होगा, Na+, that is sodium ion we are talking about। So reabsorption of sodium and water from renal tubules due to aldosterone। बिल्कुल सही है, सोडियम और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में से एल्डोस्टेरोन की वजह से, वही जो है आपका प्रिवेंशन करता है किसका? डायलिसिस का।
अब आते हैं अगले पे, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, दिस इज सिक्रीटेड बाय आवर हार्ट, इट कॉजेज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये कुछ किसका रोल है ही नहीं डायलिसिस में, एंड डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, ये भी कोई रोल नहीं प्ले करता, जेजी यानी जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। आंसर था सेकंड ऑप्शन, दैट इज 2। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 69th क्वेश्चन पे आ गए हैं अब। In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, यहाँ इको अलग लिखा हुआ है, सिस्टम अलग लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इसको एक साथ देखें, कल जो आपका पेपर हुआ था उसमें बिल्कुल एक साथ आया था, टाइपो एरर है, ecosystem is one word and E will be maybe capital but others will be small. So in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is correct? बहुत सिंपल था बच्चों, हमेशा gross primary productivity यानी GPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा होगी, एवरी टाइम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और कुछ सोचना ही नहीं था। तो आंसर था सेकंड ऑप्शन। ये ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं ध्यान से, सी द ऑप्शंस। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। मार्क द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम्स आपको मार्क करने हैं और सेलेक्ट करना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं इनमें प्लासेंटा की अगर हम बात करें, प्लासेंटा जो है ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन वो हार्मोन है जिससे कि प्रेगनेंसी का पता चलता है। अगर ये हार्मोन ना हो, अगर ये हार्मोन ना हो तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए भी इसी हार्मोन को यूज किया जाता है। जैसे आपको एड देखते हो कि टीवी में देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट, ग्रेविडेक्स टेस्ट का ऐड आता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, प्रेगा न्यूज वगैरह। तो प्रेगा न्यूज वगैरह के लिए जो टेस्ट होता है वो भी आया हुआ है नीचे पे एक बार कि which test is used for that, that is gravidex test। gravidex test होता है, which hormone it detects human chorionic gonadotropin। अगर human chorionic gonadotropin है मतलब the pregnancy is there, otherwise it is not there। तो ए को देख लो, ए को मैच करो सेकंड से, तो ए को तुमने सेकंड से जैसे ही मैच किया तो तुम्हारा अपने आप ही एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा ओवम का एक लेयर है, ठीक है, और इस लेयर को क्रॉस करना पड़ता है स्पर्म। इससे भी ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा को स्पर्म के अंदर, जो स्पर्म के एक्सोसोम में हाइल्यूरोनाइडेज वगैरह जो एंजाइम्स हैं वो डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद ही जोना पेल्यूसिडा तक पहुंच पाता है आपका स्पर्म, और उसके बाद उसके अंदर जा पाता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉकिंग अबाउट दिस, हम ये देख सकते हैं कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है आपके, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। नॉर्मली क्या होता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दे आर प्रेजेंट इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल, और दिस इज रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कोइटस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स की अगर हम बात करें तो लेडिक सेल्स जो है, जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चे, तो डी ऑप्शन में आपका लेडिक सेल्स क्या है, दीज आर बेसिकली what they secrete androgens, testosterone। लेडिक सेल्स ही तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। तो आंसर क्या होगा देखो, ए का प्लासेंटा यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, बी यानी आपका ऑप्शन हो गया क्या, जोना पेल्यूसिडा यानी लेयर ऑफ ओवम, सी यानी कि आपका हो गया क्या, फोर्थ ऑप्शन यानी लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, और लेडिक सेल्स यानी एंड्रोजन यानी फोर्थ ऑप्शन ही सही है। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। 70 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं, 70 क्वेश्चंस वी हैव आंसर्ड। स्पीड हमारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी अमेजिंग स्पीड पे हम चल रहे हैं। अब चलते हैं हम 71st क्वेश्चन पे। स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन, स्ट्रोबिलाई या कोन्स किस में मिलते हैं? बहुत डायरेक्ट सवाल था, ठीक है, डायरेक्ट सवाल का आंसर भी बिल्कुल डायरेक्ट था, आंसर था ऑप्शन नंबर 4, इक्विसीटम। चलिए, some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage, ठीक है जी। कुछ डिवाइडिंग सेल्स जो हैं सेल साइकिल को एग्जिट कर जाते हैं और एंटर कर जाते हैं वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जिसको हम कहते हैं जी नॉट। ये प्रोसेस कब होता है? दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, ध्यान से अगर तुमने सेल साइकिल करा है बच्चों तो आंसर था G1 फेज। कई इंस्टीट्यूट्स ने आंसर दिया है एम फेज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एम फेज का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, आंसर इज 2, दैट इज G1 फेज। नेक्स्ट, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ। ध्यान से देखिए, 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कई इंस्टीट्यूट्स के आंसर्स अलग अलग हैं, लेकिन आप उस पर ना जाए। देखिए, आपको करेक्ट आंसर एग्जैक्ट जो है वही मैं बता रहा हूं और वही आपको समझना है। तो देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ये जो फ्लिपर्स हैं पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स के, ये किसके एग्जांपल हैं? ध्यान से देखेंगे। देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है वो एनालोगस ऑर्गन्स की वजह से होता है। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं?
जिनका फंक्शन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो आंसर क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एडाप्टिव रेडिएशन होमोलोगस ऑर्गन्स की वजह से होता है जिनका फंक्शन डिफरेंट हो लेकिन स्ट्रक्चर यानी बेसिक डेवलपमेंटल पैटर्न सेम हो। ये चीज आप देखेंगे, आंसर था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into ये होगा बेटा 10 to the power 9 base pairs, ये 109 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, then the length of the DNA is approximately, डायरेक्ट सवाल था, 2.2 मीटर ही आंसर आएगा, करके देखें 2.2। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल एकदम ध्यान में रखें और इसको लेके चलना है, मल्टीप्लाई करोगे जब इसके साथ, ठीक है, 0.34 को मल्टीप्लाई करोगे ना इसके साथ, ठीक है, और ये इधर नैनोमीटर, इधर 10 to the power 9 बेस पेयर है, तो इधर आएगा आपका कितना आएगा अंदाजन 2.2 मीटर्स। चलिए बहुत बढ़िया, और चलते हैं आगे। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत सिंपल है, पी रिप्रेजेंट करता है एट्रिकुलर या एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और टी रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो बस देख लो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूछा है तो आंसर क्या था? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू गॉट इट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 76 पे आइए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यूसिनोफिल्स आपको पता है, they release histamines destructive enzymes, इधर होना था, उधर चला गया उस साइड, इधर आएगा, release histamines destructive enzymes। then next पे आओ, basophils आपको पता है, they release granules containing histamine, इधर चला गया, इधर आएगा सेकंड साइड, राइट साइड, release granules containing histamine। तो बस देख लो basophils यानी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना, बी यानी फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, और यूसिनोफिल वाला देख लो थर्ड ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल सही, पहला वाला ऑप्शन। सी यानी न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स आपको पता है फेगोसाइटोसिस करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन। और डी यानी लिम्फोसाइट्स आपको पता है, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून रिस्पांस, हमारा जो इम्यून रिस्पांस है वो लिम्फोसाइट्स ही तो बनाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा फर्स्ट, और फर्स्ट ऑप्शन ही सही जवाब है। ध्यान से देखिए, चले आगे जी, मजा आ रहा है। 76 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और 90 क्वेश्चंस तक की गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी के एंड तक हमें पहुंचना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ और चीजें बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इस बार, वो उम्मीद की जा रही है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ध्यान से देखें, एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल पहला वाला ही करेक्ट है। ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, ए डबल बॉन्ड टी, चार्जर्स रूल याद करो। बाकी एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम गलत हो गया, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो ही नहीं सकता, वो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है, और एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमीन, तो डीएनए कहां से बनेगा भाई? चल, so next is question number 78, the sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed, वो सीक्वेंस जो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर जो लिंक्ड डीएनए होता है वेक्टर को, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन साइट, ओआरआई साइट, ठीक है, पहला सेलेक्टेबल मार्कर वो गलत है, ओआरआई साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट। तो देखो, रिकॉग्निशन साइट तो जो रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो कि चाहे इस साइड से पढ़ो चाहे उस साइड से पढ़ो, जो कि तुम्हारा बिल्कुल सेम हो। आई होप यू गॉट इट, सो आंसर इज ओआरआई साइट, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, देखो टायरोसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक एमिनो एसिड है, लाइसिन ही बेसिक एमिनो एसिड है, लाइसिन अर्जिनिन ये बेसिक एमिनो एसिड है, क्योंकि इनमें एक NH2 ग्रुप, तो एक एमिनो ग्रुप तो सभी एमिनो एसिड में होता है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सभी एमिनो एसिड में होता है, लेकिन R ग्रुप के अंदर भी एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है इनमें, दैट इज NH2, ठीक है, वालिन बिल्कुल अलग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, दैट इज लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये डायबिटीज इंसिपिडुआ नहीं है, ये इंसिपिडस होगा। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसमें एक हार्मोन है आपका, कौन सा आपको पता ही है, ADH, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और उसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। थायराइड ग्लैंड आपको पता है, हार्मोनल डिसबैलेंस जब होता है थायरोक्सिन का, तो ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड के डिसफंक्शनिंग से एडिसन्स डिजीज होती है, और पैनक्रियाज जो है आपका, उसके डिसफंक्शन से आपको पता है डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। तो कौन सा बैठेगा चॉइस, आप देख सकते हैं, ए का थर्ड वाला, और बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, और डी का 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चल आगे चलते हैं,
Select the correct statement. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis. एकदम सही है, सोचना ही नहीं है. Gluconeogenesis का मतलब क्या है? Formation of glucose from new sources. Formation of glucose from new sources, और वो new sources कुछ भी हो सकते हैं. They can be amino acids, they can be, you know, what you call as lipids, they can be fats, they can be anything. Fats हो, amino acids हो, कुछ भी हो. ठीक है ना? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस. और ग्लाइकोजन जब हम मान लो हमें कई दिनों से खाना नहीं मिला, इफ अ पर्सन इज स्टार्विंग, इफ अ पर्सन इज अंडर स्टार्वेशन, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस, क्योंकि मसल्स के अंदर और लिवर सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है वो टूट टूट के ग्लूकोज बनाता रहता है. So glucocorticoids stimulate gluconeogenesis. Glucagon is associated with hypoglycemia. तो यहाँ पे आप देखो सेकंड गलत है, थर्ड गलत है. इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, बिल्कुल गलत है. इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं भाई. इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलिटस होता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया. तो आंसर क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट चुनना था, ऑप्शन विल बी फर्स्ट, दैट इज glucocorticoids stimulate gluconeogenesis. I hope you got it. मजेदार सवाल थे. आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई सवाल जो है क्या थे क्या नहीं थे, बहुत इजी सवाल थे. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कट ऑफ ऊपर जाएगा. द कट ऑफ इज गोइंग टू बी मोर. सो दिल थामे रखिए और आगे चलते हैं. देखिए मैं आपको बिल्कुल भी कतई भी डिमोरलाइज नहीं होने दे सकता. आप मेरे स्टूडेंट्स हो बच्चों, आई कैन नॉट अलाउ यू टू बी डिमोरलाइज, बट हमें फैक्ट को तो समझना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए पेपर वाकई बहुत इजी था बच्चे, पेपर वाकई बहुत इजी था. और मैं जितने मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात बताऊं, मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत सही करके आए पेपर, और ज्यादातर स्टूडेंट्स दैट कॉन्फिडेंट इनफ की रैंक आएगा. देखिए आपको सही टीचर की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है अगर नीट निकालना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स. इनमें से कौन सा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में? ध्यान से देखिए, द आंसर इज कोलेजन. क्योंकि सबसे एबंडेंट हमारे स्किन में, हमारे हर एक कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू का मेन जो फाइबर है कोलेजन फाइबर, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जो स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, वो कोलेजन प्रोटीन से बनता है. तो आंसर इज कोलेजन. ये तो कई बार आ चुका है इस तरह का सवाल पहले भी, लैंग्वेज बदल बदल के, विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बीइंग्स, या कभी एनिमल्स में पूछ दिया इस तरह से. आंसर वाज कोलेजन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by, देखो chromosomal theory of inheritance दी किसने थी? Sutton and Boveri. Chromosomal theory of inheritance दी थी Sutton and Boveri. तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? देखो मेंडल का इससे कोई लेना देना नहीं था, मेंडल पहले ही जा चुके थे. सटन ने बनाया. अब तुम्हें लग सकता है कि सटन और बोवरी ने दी थी तो उन्होंने ही कर दिया होगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. तो एक ऑप्शन इन्होंने जानबूझ के सटन दे दिया, एक बोवरी दे दिया. तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है. उन्होंने सिर्फ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी. आंसर था T.H. Morgan, that is Thomas Hunt Morgan, that is option number 4. Morgan दिया हुआ है. और he is also called as the father of experimental genetics, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे इतने सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए और लिंकेज को इतना ज्यादा लाइमलाइट में वही लेके, और आज मॉर्गन की वजह से और उनके स्टूडेंट्स की वजह से हम लिंकेज को जानते हैं, जीन मैप्स को जानते हैं. He was lucky to have very good students like Alfred Sturtevant, Hugo de Vries. सारे के सारे इसके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे. नेक्स्ट 84 पे आइए. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ध्यान से देखिए. फ्लोटिंग रिब्स, देखो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, देखो पीछे थोरैक्सिक वर्टिब्राई से आते हैं, ठीक है, और यहाँ डायरेक्टली जो ये स्टर्नम है, यहाँ स्टर्नम से जो अटैच होते हैं फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, उनको हम कहते हैं बेटा ट्रू रिब्स. उसके बाद जो आते हैं विच आर इनडायरेक्टली अटैच्ड टू द sternum, that is they are directly attached to the 7th pair of ribs, वो है 8th 9th और 10th pair. 8th 9th और 10th pair, यानी कि 8th 9th और 10th pair जो है वो 8th 9th और 10th pair जो है आपका वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है स्टर्नम से, वो अटैच्ड है किससे? 7th pair of ribs. और उसके बाद आप देखते हो 11th और 12th पेयर जो है रिब्स का, वो पीछे से थोरैक्सिक वर्टिब्रा से अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहता है. वो ना तो डायरेक्टली अटैच्ड है स्टर्नम से और ना रिब्स से, 7th पेयर ऑफ रिब्स से या किसी और पेयर ऑफ रिब्स से अटैच्ड है, यानी कि उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. तो फ्लोटिंग रिब्स का आंसर क्या हो गया? देखो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए का, क्या? डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम. दे डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम. तो बहुत सही बात हो गई जी. तो ए का हो गया 4. अब देख लो ए का 4 वाला एक ही ऑप्शन है. फिर भी हम आगे देखेंगे. एक्रोमियन प्रोसेस आप जानते हो क्या होता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है. ये कॉलर बोन, ये कॉलर बोन, ठीक है ना. और उसके बाद स्कैपुला क्या होता है? ये पीछे वाला शोल्डर ब्लेड, ठीक है. मूवमेंट एंड लोकोमोशन से था ये क्वेश्चन, ठीक है. स्कैपुला आपको पता है, स्कैपुला क्या होगा आपको पता है क्या? कहाँ पे होगा स्कैपुला? सी वाला जल्दी से बता दो फटाफट. यस, लोकेटेड बिटवीन 2nd एंड 7th रिब्स. ये और ग्लिनॉइड कैविटी आपको पता ही है. ग्लिनॉइड कैविटी में ही तो ह्यूमरस का जो हेड है
वो फिक्स हो जाता है, तभी तो उस जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हमारी बॉडी में 4 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, एक यहाँ, एक इधर और एक इधर। पेल्विक गर्डल में भी 2 हैं और पेक्टोरल गर्डल में भी 2 हैं। आई होप यू गॉट इट। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? सिर्फ 6 सवाल बाकी है, कर लें? चल, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशंस अगर हम कहें इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो अब ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा है। इसमें आंसर जो होना चाहिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशंस पूछा गया है कि सबस्ट्रेट लेवल पे जो फॉस्फोरिलेशन होता है तो 1 होगा इसका आंसर। आंसर इसमें टाइपो एरर हो गया है, आंसर वुड बी 1। आंसर वुड बी 1, सो जस्ट रिमेंबर द आंसर वुड बी 1। ठीक है, दैट इज सेकंड चॉइस। ओके, नेक्स्ट पे डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग किस, जो जैसे हम कहते हैं ना मियोसिस 1 की बात करते हैं, तो मियोसिस 1 में सब स्टेज होते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 की ये सब स्टेजेस हैं। लता जरा पानी दे दे, ये फॉर्मूला है। लता यानी L फॉर लेप्टोटीन, जरा Z फॉर जाइगोटीन, पानी P फॉर पैकिटीन, दे यानी डिप्लोटीन, पहला दे यानी डिप्लोटीन और लास्ट दे यानी डाइगेनेसिस। आपको ये जो फॉर्मूला याद रखना है वो सिर्फ पहले अल्फाबेट से याद रखना है। लता जरा पानी दे दे यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइगेनेसिस। ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जो मैं अपने क्लासेस में देता हूं जनरली, और बच्चों को काफी इससे फायदा होता है। आई एम आल्सो राइटिंग अ बुक ऑन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी फॉर नीट, so it's going to be published by one of the biggest publishing houses across the country, or it's going to be a huge book in 2 volumes, so वो भी hopefully that will be coming by February। तो उस बुक को भी आप पढ़ेंगे, उसमें आपको काफी सारे फॉर्मूले वगैरह मिलेंगे। मैं अपनी नॉर्मल सभी क्लासेस में इन फॉर्मूले को जनरली मैं यूज करता हूं ताकि बच्चों को देखिए these are mnemonics, these mnemonics help them in remembering the concept for a long time, जो कि नीट में काफी हेल्प करता है। तो देखिए डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो सिनेप्स बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका डिसोल्यूशन किसमें होता है? डिप्लोटीन में होता है बच्चों। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद चलिए, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय, ये तो हलवा था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन। देखो, पहली बार अगर मैं तुम्हें कहूं रेडिएटा, रेडिएटा मतलब क्या है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये जो फाइलम है ये रेडिएटा में आता है क्योंकि इनमें रेडियल सिमेट्री है। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स इन मेनी प्लेन्स, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको एक ही प्लेन में हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज कॉल्ड एज बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स की शुरुआत मानी जाती है, अगर हम एनिमेलिया की बात करें, एनिमल डायवर्सिटी की बात करें, तो मानी जाती है प्लैटीहेलमिंथस से। किससे? प्लैटीहेलमिंथस से। प्लैटीहेलमिंथस मतलब जिसमें टेपवर्म्स आते हैं। ठीक है, so bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by, यहाँ आंसर होगा platyhelminthes, क्योंकि एसिलोमेट भी है वो, उनमें सीलोम नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। एंड सीलोम है क्या? सीलोम इज द सेकेंडरी बॉडी कैविटी, जो कि इसका डेफिनेशन क्या है? इट शुड बी इनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय मेसोडर्म। अगर मेसोडर्म अंदर की तरफ से भी है, बाहर की तरफ से भी है, दोनों तरफ से है, तो हम उसको कहेंगे क्या? सीलोम। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको कहते हैं सीलोम इज नॉट प्रेजेंट। तो ऐसा होता है प्लैटीहेलमिंथस में सीलोम नाम का स्ट्रक्चर है ही नहीं, लेकिन राउंड वर्म में सीलोम जैसा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इट इज नॉट enclosed from all sides by, or it is not covered from all sides by mesoderm, इसीलिए उसको कह देते हैं स्यूडोसीलोम। और इसीलिए जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है जो राउंड वर्म्स में आता है उसको हम कहते हैं स्यूडोसीलोमेट। क्या कहते हैं बेटा? स्यूडोसीलोमेट। तो बहरहाल इस बात करें इस क्वेश्चन की, bilaterally symmetrical and acoelomate animals are exemplified by, आंसर होगा डी यानी प्लैटीहेलमिंथस। टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री वाला है, एशेलमिंथस जो है वो बायलेटरल सिमेट्री वाला जरूर है, लेकिन उसका जो सीलोम की अगर हम बात करें तो स्यूडोसीलोम है, यानी स्यूडोसीलोमेट एनिमल है ये। और एनिलिडा आपको पता है ये अर्थवर्म में आता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। एनिलिडा में ही अर्थवर्म्स आते हैं, अर्थवर्म भी आते हैं इसमें, नीरीज भी आता है और लीच भी आता है। ठीक है, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग कि एनिलिडा अर्थवर्म में आता है, नो, एनिलिडा में अर्थवर्म, लीच और नीरीज आते हैं। तो एनिलिडा जो है ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, बायलेटरली सिमेट्रिकल भी है, लेकिन ट्रू सिलोमेट है यानी यूसिलोमेट। और यूसिलोमेट में भी कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, शाइजो या एंटेरो। तो शाइजोसिलोमेट, इसमें की सीलोम इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। आई होप यू गॉट इट, समझ में आया? मजेदार है। ओके, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, बॉडी जो होती है ओव्यूल की वो फ्यूज्ड होती है विद इन द फ्यूनिकल एट, कहां पे? हाइलम। सो आंसर विल बी 1, हाइलम। गॉट इट? चलिए, माइक्रोपाइल और शलाजा ये 2 एंड्स होते हैं, आपको पता ही है। न्यूसेलस क्या होता है आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, गॉबलेट सेल्स किससे मॉडिफाइड होते हैं? जरा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। देखो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हो नहीं सकते। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल जो होता है ना, सिंपल स्क्वैमस की अगर बात करें तो एक ही लेयर होती है, जैसे लगता है जैसे टाइल्स बिछा रखे हो। पेवमेंट एपिथेलियम भी इसी का नाम है।
जहां बहुत अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन होना हो एल्विलाई के पास, या जहां किडनी में जहां भी जो हमारा फिल्ट्रेशन होना हो वोमेन्स कैप्सूल वगैरह, तो वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, देखो एलिमेंट्री कैनाल में ज्यादातर जो आपके सेल्स प्रेजेंट है वो कॉलमनार है, दे आर कॉलम लाइक, ठीक है ना। तो आंसर होगा कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। आई होप यू गॉट इट। एंड लास्ट क्वेश्चन, वी हैव कम एट द बैक एंड ऑफ दिस पेपर। क्या इजी था ना पेपर? हलवा था एकदम, कुछ भी नहीं था इस पेपर एकदम। मैं इतना बता दूं, केमिस्ट्री जरूर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा टफ था, लेकिन कुछ बच्चों को फिजिक्स टफ लगा, हालांकि फिजिक्स भी ठीक ठाक था इस बार। बायोलॉजी का पेपर, बॉटनी जूलॉजी का पेपर इस बार जो कल आया है, दैट वाज द मोस्ट इजीएस्ट वन इन द लास्ट सेवरल इयर्स। इसके बाद हम कट ऑफ की बात भी बताएंगे थोड़ी सी। स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 90th क्वेश्चन। ध्यान से देखिए किसकी वजह से है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कई कैटेगरीज में बांटा जाता है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है कॉर्निया का ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको दिखाई प्रॉपर्ली नहीं दे जाएगा, और दैट इज कॉल्ड एज स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन द आई बाय लो टेंपरेचर नहीं होता, हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो भी नहीं होता, और डैमेज टू रेटिना कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेज भी नहीं होता। सो आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आप सब लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अपने मार्क्स को जोड़ लें, और ये देखें कि अगर बायो में आपका इस बार 340 प्लस आ रहा है, तो यू आर हैविंग अ गुड चांस। इवन इफ यू आर हैविंग 320 प्लस आल्सो, द चांस इज स्टिल देयर। लेकिन अगर 300 से कम है तो चांसेस थोड़े कम है। इसलिए कम है क्योंकि बायो का पेपर इतना इजी था कि इसमें जो एवरेज बच्चा है वो भी 280, 290 और 295 के करीब ले आएगा, तो कट ऑफ अपने आप ऊपर जाएगा। फिजिक्स थोड़ा सा नॉर्मल सा था, तो इसलिए फिजिक्स में भी कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। केमिस्ट्री कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा टफ था, तो इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल जो कट ऑफ है वो आप मार्क करके चले, लिख लें 585 to 600। दिस इज माय प्रेडिक्शन, 585 to 600 ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूं। और अगर एम्स की बात करें तो इफ आई टॉक अबाउट एम्स, 600 प्लस जो है वो आपको एम्स के लिए चाहिए होगा। बल्कि रादर अगर मैं दिल्ली एम्स की बात करूं तो आपको उसके लिए 685 प्लस चाहिए। दिल्ली एम्स के लिए यू रिक्वायर 685 प्लस मार्क्स, उसके बगैर नहीं। बाकी जो एम्स है अलग, बाकी सारे, उसमें भी आपको मैं बता दूं, उसमें भी 600 भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ नए एम्स खुले हैं इसलिए चांसेस है, तो हो सकता है 620 पे या 640 पे भी आपको मिल जाए। बट जो न्यू दिल्ली वाला एम्स है वो नहीं मिलेगा 685 से नीचे। अगर डीपीएमटी की बात करें, डीपीएमटी के थ्रू जो कॉलेजेस होते थे पहले, मैमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, लेडी हार्डिंज है, इनकी बात करें तो इनके लिए भी आपको कम से कम 650 प्लस चाहिए। और 650 प्लस भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम ही बता रहा हूं मैं, ताकि आप डिमोरलाइज ना हो। असल में अगर बताऊं तो 670 के आसपास चाहिए, अदरवाइज यू डोंट स्टैंड अ चांस इन दिस। इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल, बाकी इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मार्क करके आप देख लीजिए। किसी अच्छे ट्यूटर का, जो अच्छे एजुकेटर हो, उनके वीडियोस देखिए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स का वीडियोस देखिए और उससे मार्क करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आप 585 से नीचे हैं तो चांसेस इस बार कम है। हो सकता है 575 के आसपास आपको बीडीएस मिल जाए, 570 के आसपास बीडीएस मिल जाए, बट एमबीबीएस का तो इस बार मुश्किल लग रहा है 585 से नीचे। And with this, I would like to tell you that be positive and just do whatever is possible to crack the NEET. और NEET को हम क्रैक कर सकते हैं अगर सही गाइडेंस हो, अगर सही ढंग से आप चलें। जरूरी नहीं कि एक ही बार में नीट निकल जाए, हो सकता है ना निकले, लेकिन आपको रियलाइज जरूर हो जाएगा कि वेदर यू आर मेड अप फॉर नीट और नॉट। अगर आप नीट के लिए नहीं बने हैं तो कोई और रास्ता तलाश लें, लेकिन अगर आप नीट के लिए बने हैं तो जरूर नीट को ट्राई करें और क्रैक करके। चलिए, बहुत बढ़िया। विद दिस आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू।